Hello, viewers. Welcome to my YouTube channel, Health and Wellness with Dr. Deepti Mala. I'm initiating a series of podcasts with specialists on varied topics. 10 बहाने करके हो गए fit. I'll be asking 10 questions to our guests on the show. And guess what the topic is today? Something which is very prevalent in the society and very relevant. You would have heard people say कि जैसे जैसे एज होती है बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और क्रैक हो जाती हैं. Yes, you guessed it right. Osteoporosis. We have with us today my anesthesiology colleague and dear friend, Dr. Sarika Srivastava. Welcome, ma'am. She is a dedicated and accomplished medical professional. Dr. Sarika is a postgraduate in anesthesiology with a strong academic background and a reputation for excellence. With extensive expertise in critical and high pressure medical environments, Dr. Sarika has demonstrated expertise in delivering compassionate, precise, and effective anesthetic care. Beyond her clinical duties, she is an active member of several social organizations and a passionate advocate of sustainable living. Her commitment to both healthcare and community development reflects a holistic approach to medicine and social responsibility. So we begin with our first question for the audience. What is osteoporosis? का मतलब है वीक एंड थिन बोन्स, जिसका मतलब है जैसे कि अगर आप समझो कि एक हाथ में हम व्हाइट रसगुल्ला लें और एक में हम घेवर लें, तो जो व्हाइट रसगुल्ले में छोटे छोटे छेद होते हैं वो एक नॉर्मल बोन की तरह होते हैं, और घेवर में जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन में होते हैं. नेचुरली जब बड़े बड़े छेद होंगे तो आपकी डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा ऐसी बोन में. इसी बोन को हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन कहते हैं. वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. इतना अच्छा एग्जाम्पल देके आई एम श्योर पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. सो ऑस्टियोपोरोसिस डेंजरस क्यों है? व्हाई इज इट डेंजरस? देखो, ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर्स तो होते ही हैं, पर डेंजरस इसलिए है ये क्योंकि एक साइलेंट डिजीज है. जब तक बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी बोन्स खोखली नहीं हो जाती, नॉर्मली कोई सिम्टम ही नहीं होता है, इसलिए ये डेंजरस है. अगर कोई भी जैसे कोई बीमारी है, अगर उसका पता चल जाए कि भाई बुखार आता है इससे या कहीं दर्द होता है, तो आदमी उसके प्रति सतर्क हो जाएगा. बट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सिम्टम until and unless a fracture occurs. That is why it is a dangerous disease. फिर भी there would be some earlier symptoms. एक इंडिविजुअल को कैसे पता लगे? See, early symptoms में कुछ भी नहीं होता है. Later as the disease progresses, तब जो है आपकी bones में दर्द हो सकता है, आपका जो है हाइट थोड़ी कम हो सकती है, आपका stooped पोस्चर हो सकता है, जिसे हम डाउएजेस हम कहते हैं. धीरे धीरे हमने देखा हमारी मम्मी वगैरह जो थी धीरे धीरे झुक गई. ये एक्चुअली वर्टिब्रस का इंटीरियर फ्रैक्चर होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे झुकती चली जाती हैं. या फिर कोई बोन है उसको प्रेस करने में वहां पे पेन हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स जब कोई फ्रैक्चर हो ही जाता है तब फिर उसके बारे में हमें पता चलता है. तब तक हमें, या आप किसी और कंडीशन के कारण आप एक स्कैन के लिए जो कि डेक्सा स्कैन होता है वो आप कराएं, उससे आपको पता चलता है कि आपकी हड्डियां अब कमजोर हो गई हैं. ठीक है, you have told about what are the consequences of neglecting it, basically. So yeah, naturally the consequences are fracture. Yeah. So how common is osteoporosis? See, 1 in every 3 women and 1 in every 5 men will have osteoporosis after the age of 60. That's so a very high unless rate. and until That's a very Yes, you said 1 in every 3 women. And there are many. Yeah. 3 women, correct. And 1 in every 5 men will have osteoporosis. So how do we go about it? We have to be very, very suspicious as far as osteoporosis goes. Unless and until there is a preventive program for it, I don't think osteoporosis can be prevented. So how do you prevent it? तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे समझो कि जो एंटायर बोन मास है हमारा वो एक बैंक अकाउंट की तरह है.
जो कि टिल द एज ऑफ 30 वो जो है एक पुख्ता बैंक अकाउंट हम बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे ड्यू टू वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ and due to various conditions, medical conditions, or due to other physiological phenomena, वो धीरे धीरे बैंक अकाउंट कम होता चला जाता है। तो फिर हम कैसे समझें? नेचुरली जो हमारा अगर बैंक अकाउंट पहले से ही बहुत मजबूत और पुख्ता होगा, वो बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली होगा। सो फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 25 वी कॉल इट लाइक द पीक बोन मास पीरियड। इस समय जो यंग एडल्ट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको अच्छा कैल्शियम, अच्छा खाना पीना, खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब अगर उनकी जीवन में होगा तो उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। फिर सेकेंड फेज ऑफ लाइफ होता है फ्रॉम 25 to 35। इसमें जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, दे गो थ्रू वेरियस फिनोमेनास या वेरियस एक्टिविटीज, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, इसमें भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। एंड आफ्टर 45, 55, 50 से मेनोपॉज होता है, जब ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके कारण जो है आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। बिसाइड्स दिस, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिसका मतलब कोई और कंडीशन भी है आपको, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन प्रॉब्लम्स में काफी स्टेरॉइड का यूज करना पड़ता है। एंड स्टेरॉइड जो है वो वैसे जो है वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है फॉर एन एनेस्थेटिस्ट, बट हड्डियों के मामले में वो बहुत ही तेजी से आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में सब कुछ अनरेगुलेटेड है। बहुत से लोग जो हैं अपनी हड्डी की बीमारी के लिए या अस्थमा के लिए या या बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए किसी हकीम या कोई एक जो छोटा सा डॉक्टर है उनकी गली में, उसी के पास चले जाते हैं, और इन लोगों के पास स्टेरॉइड के अलावा कोई खास दवाएं होती नहीं है जनरली, आई एम सेइंग। तो वो पुड़िया बना के स्टेरॉइड दे देते हैं, उससे आपके सिम्टम्स फौरन ठीक हो जाते हैं। आप सोचते हो कि वाह, दवाई में तो जादू था। वो आयुर्वेदा के नाम पर, होम्योपैथी के नाम पर आपको एक्चुअली स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, उससे भी आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग कैसे की जाए? देखो, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड तो है डेक्सा स्कैन। ये एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है, उसमें लेटना होता है और उसमें 5 मिनट्स में ये स्कैन हो जाता है। इसमें रेडिएशन बहुत ही कम होता है, जैसे कि जो एक एक्सरे चेस्ट का रेडिएशन होता है उसका 1000th पार्ट। सो इट इज नॉट अ डेंजरस टेस्ट। एंड अब ये मशीन जो है आगरा में भी है बहुत लोगों के पास, आई थिंक हर शहर में ये मशीन है, ऑल्दो इट इज नॉट एज कॉमन एज अ एक्सरे मशीन, बट स्टिल एक ये मशीन अब अवेलेबल है जिससे कि आप ये टेस्ट कर सकते हो और उससे पता चल सकता है कि आपका बोन डेंसिटी कितनी है। WHO का एक क्लासिफिकेशन होता है, उसमें अगर -2.5 से नीचे आपका जा रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, इसका मतलब आप शक के घेरे में आ चुके हो और आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। सो इसका टेस्ट के लिए आपको जो है डेक्सा स्कैन कराना होता है, और भी बहुत सारे यूरिनरी मार्कर्स होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, पर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक अपना डेक्सा स्कैन करा लें, हर साल एक बार करा लें या 2 साल में एक बार करा लें, तो आप काफी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो एक विमेन को किस एज पे अपना डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए? व्हाट वुड यू रिकमेंड? तो इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ये आएगा कि विमेन को अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, है ना? डेक्सा स्कैन की आपको जरूरत पड़ सकती है, या तो 55 के बाद हम करा सकते हैं, या कोई उसको एक माइनर इंजरी से फ्रैक्चर हो जाए उसमें करा सकते हैं, पर उससे पहले उसको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे जब वो एडोलेसेंट है तब उसको 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है, और कैल्शियम अकेले खाने से कुछ नहीं होगा, आपको विटामिन डी भी खाना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपका कैल्शियम एब्सॉर्ब होता है। फिर आपको जो है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप लैक्टेटिंग हो, चाहे आपको कितना भी नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा हो, चाहे आप कितना भी निग्लेक्टेड, आप डिप्रेस्ड हो, कोई भी प्रॉब्लम है, फिर भी कैल्शियम की गोली आपको जरूर लेनी चाहिए। फिर जैसे जैसे इनफैक्ट मेनोपॉजल के बाद तो कैल्शियम कम होता ही है। इट इज पेरीमेनोपॉजल एरिया ऑफ योर लाइफ, जब बहुत रैपिडली आपकी बोन से कैल्शियम निकल रहा होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने और आपको कोई स्टेरॉइड की हिस्ट्री है या आपके पेरेंट्स को भी फ्रैक्चर हो चुका है, तो आपको मे बी 55 की एज से अपना डेक्सा स्कैन करवाना शुरू कर देना चाहिए।
तो कैल्शियम की आपने बताया जैसे 500 मिलीग्राम बीडी 1 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। सो थ्रू आउट लाइफ आगे कैल्शियम और विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है फीमेल्स को? देखिए, करीब-करीब ऐसे सोचिए 500 मिलीग्राम बीडी से लेके 1000 मिलीग्राम ओडी हो गया ये, और आप 1500 मिलीग्राम तक आपको खाना होता है। इसमें अब नए टाइप के कैल्शियम आ गए हैं जिनको हम K27 कहते हैं। बहुत से लोगों को जो K27 होता है, दे आर क्लेमिंग कि वो जो है आर्टरीज़ में जाके नहीं जाता है, वो सीधे कैल्शियम को बोन तक ही पहुँचाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कैल्शियम ज़्यादा खाएँगे तो स्टोन्स बन जाएँगे। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम खाने से स्टोन्स बनते हैं। उल्टा अगर आपको ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, तो वो उनको प्रिवेंट करता है कैल्शियम। तो रफली से 1000 मिलीग्राम से लेके 1500 मिलीग्राम तक ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसी बीच में आप विटामिन डी का टेस्ट भी करा सकते हो, क्योंकि ऑल्दो इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ सनशाइन बहुत होती है, फिर भी फॉर व्हाटएवर रीज़न्स आई डोंट नो कि बच्चे लोग अंदर रहते हैं, घर में सब लेडीज़ अंदर ही रहती हैं, या सनस्क्रीन लगाती हैं, या डाइटरी इतना अनअवेयरनेस है, हमारा जो खाना है वो फोर्टिफाइड नहीं है, इसलिए विटामिन डी की कमी काफ़ी होती है इंडिया में। तो वो आप टेस्ट करा सकते हो। हमारे हिसाब से इट शुड बी मोर देन 30 इंटरनेशनल 30 पॉइंट्स इन योर ब्लड, मोर देन दैट। एंड कैल्शियम तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने ब्लड टेस्ट कराया और कैल्शियम हमारा नॉर्मल था, उसमें 9 टू 12 मिलीग्राम परसेंट था। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम हमेशा नॉर्मल रहता है, क्योंकि कैल्शियम को बहुत सारी चीजों में ब्लड हमारी बॉडी यूज करती है। वन ऑफ देम इज जस्ट कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो आपका हार्ट ही नहीं चलेगा। तो ब्लड में कैल्शियम कांस्टेंट रहे तो क्या करता है, बोन में से ले लेता है। तो इसलिए पता ही नहीं चलता है। लोग सोचते हैं हमने ब्लड कैल्शियम करा लिया, सीरम कैल्शियम हमारा नॉर्मल है मैम, कोई कैल्शियम की कोई कमी नहीं है। उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली ये नॉर्मल कैल्शियम, it is coming from the bones actually, by the, you know, it's being leached out from the bones, and then the body is able to maintain. ये हमने विमेन की केयर की बात की, थोड़ा सा मेन को क्या केयर की जरूरत है टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस? तो हाँ, Yeah, सो भी so men की भी उतनी ही चिंता है। हाँ जी। हाँ, हम्म, उतनी ही तो चिंता मेन है। की भी और उतनी ही चिंता है जितनी फीमेल्स की हमें चिंता है, क्योंकि मेन में भी एक तरीके का एंड्रोपॉज मेनोपॉज होता है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। और मेन, बहुत से मेन स्मोकिंग, अल्कोहल, एंटासिड्स। हाँ हाँ, बहुत व्यूअर्स होंगे उसमें, पेरेंट्स होंगे इस समय, फीमेल्स होंगी, जो भी होंगी, उनके मन में एक ये क्वेश्चन होगा कि मेरी एक यंग डॉटर है ना? हालांकि इसके बारे में थोड़ी विमेन हेल्थ केयर के बारे में बात हो गई है, फिर भी आप कुछ टिप्स बताइए, जिसकी एक यंग टीनेजर डॉटर है, वो थ्रू आउट लाइफ उसको कैसे गाइड करे डाइट और लाइफस्टाइल कि उसका ऑस्टियोपोरोसिस का चांस कम रहे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसे और बीमारियां होती हैं, ये सब जेनेटिकली भी डिटरमिन होती हैं। थोड़ा-सा इनमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर किसी माँ को फ्रैक्चर हुआ है, उसकी माँ को फ्रैक्चर हुआ है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट डिस्पाइट बेस्ट ऑफ एफर्ट्स उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो यंग एज में पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऊट-पटांग चीज़ों से जैसे डिप्रेशन और लेट नाइट पार्टीज़, सर्कैडियन रिदम, इन सब से बच्चे को जो है अर्ली एज से ही गाइड करना चाहिए। कुछ लोगों ने, ये बहुत पॉपुलर हो गया कि वीगन बनना चाहते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं। ये थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि जो असली कैल्शियम की मात्रा है, वो दूध और मिल्क प्रोडक्ट से ही हमको मिलती है। 1-2 ग्लास, जैसे हम लोग बचपन में सुबह स्कूल जाते समय और रात को 1 ग्लास पी के सोते थे, शायद इसीलिए बचे हुए हैं, बिकॉज़ इनफ कैल्शियम मिला हमें। कुछ लोग अब ग्लूटेन फ्री भी जाना चाहते हैं, जो बचा-कुचा कैल्शियम व्हीट से मिल सकता था, वो भी नहीं मिल रहा है। चलो, अगर वो भी नहीं देना चाहते हो, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स नहीं बच्चा ले पा रहा है, तो कैल्शियम आपको सप्लीमेंट के तौर पे बहुत ही सस्ती और एक छोटी-सी गोली होती है। कम से कम 500 मिलीग्राम सुबह और 500 शाम आपको बच्चे को देनी चाहिए। फिर वो जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी बात, जब वो प्रेग्नेंट होती है, लैक्टेटिंग होती है, तब इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनको जो है इनफ कैल्शियम और विटामिन डी मिल रही है। विटामिन डी का टेस्ट
साल दर साल कराते रहना चाहिए। अगर वो कम आया है तो उसके शॉट्स भी अवेलेबल है, उसका जो है शॉट्स आजकल जो है वो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वो देते रहना चाहिए। उससे जो है बच्चों की हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी और स्वस्थ और मजबूत लड़कियां हमारे सामने आएंगी। काफी अच्छी चर्चा रही आपसे एक टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस पर। अगर अवेयरनेस क्रिएट होगी तो इसके बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू से ही अपने बच्चों को दें, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं लाइफ के, कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, धूप में थोड़ा जाना, दूध पीना और अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाना। तो इसके साथ ही हम इसको एंड करते हैं and we'll wait Correct. for the response from the viewers and surely I'll connect with you again on a few other topics. या अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो बेझिझक हम लोगों से पूछ सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड देम। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आप अपने क्वेश्चंस इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं and both of us will try to address each question. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye.